Hello, dear children. मैं हूँ हिमांशी अग्रवाल and today we are going to complete our chapter number 1, that is real numbers. Yes, and this is the last exercise, exercise 1.4, and it has one question that is very important from the exam perspective view also. And this type of question even you will be facing when you will be appearing for the competition exam in future. So this is very important, and we'll be understanding the concept first and then we'll be solving this question. Okay, so let me show you the question. Before that, if you're new to this channel, let me tell you something about this channel, that here you will be getting all CBSE updates. Okay, the quick solution to the NCERT, that is the main target, because you know that NCERT is something very basic, but we cannot neglect it, because more than 85%, or we can say 85% of the paper depends on this NCERT book only. So we'll be focusing on that, and also we'll be taking some important questions from the previous years as well. So class 9 10 mathematics, this is the channel all about, and we'll be solving the previous year question practice paper for class 10 especially, but also for class 9 where I'm having some very genuine practice sets which will be helping you in preparing for your exams and unit tests as well. So let's move to this video. If you haven't subscribed this channel, please do subscribe the channel and like the video and share among your friends so that we all can learn together. So this is the question which you must have been seeing in your book, right? So this is the first question. And if I talk about this question, so here, without performing the long division, means by dividing, you can definitely tell अगर आपने लॉन्ग डिवीजन करा है तो आप बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको परफॉर्म नहीं करना लॉन्ग डिवीजन. Without performing the long division, you have to state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansions or non-terminating decimal expansion. ठीक है, सो आपको ये बताना है. सो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी बात कर लेती हूँ पहले, एंड देन वी विल बी कमिंग टू दिस. सो लेट मी शो यू द एनसीईआरटी बुक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दैट इज हियर. All right, so as you can see, this is the book, the PDF. Okay, if you want it, I can even give you in the description. So there are some theorems जो कि state करती है कि कैसे हम बिना perform करे, बिना long division करे, हम कैसे identify कर सकते हैं किसी rational numbers की properties को. So all of you know that the rational numbers is in the form of P by Q. ठीक है, P by Q की form में होता है ये, and the prime factorization of Q is in the form of this. So हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, एक जहाँ n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. सो इस क्वेश्चन के जो मेन थ्योरम आती है सबसे लास्ट में, एक्सरसाइज की जस्ट ऊपर ये वाला स्टेटमेंट जो है आप पढ़ रहे हो ना, ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि अगर x p बाई q के फॉर्म में है, जहाँ पे p और q क्या है, कोई को प्राइम्स है, मतलब एक रेशनल नंबर अगर कोई दिया हुआ है, सच दैट कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किसके फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में, जहाँ पे n और m क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन. अगर ये q इसकी फॉर्म में अगर नहीं है, इट इज रिटन नॉट इन द फॉर्म. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, किसी भी और फॉर्म में है, तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. सो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर Q किसके फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में अगर है, ओके, इफ इट इज यस, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, आपकी बुक का एग्जांपल है, जस्ट लाइक सपोज ये है कोई. ठीक है, यहाँ क्या है, 3/2 की पावर 3, यहाँ पे फॉर्म क्या है, 2 है. हाँ, एक चीज और कि केवल 2 की फॉर्म में होगा या केवल 5 की फॉर्म में होगा तब भी चल जाएगा, बट 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, लाइक 7 अगर है, उसमें 3 है, या 5 सॉरी या 9 है, या कोई भी प्राइम फैक्टर 11 है, 17 है. सो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ठीक है, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर जो है उसमें फैक्टर्स क्या होंगे, सिर्फ 2 होंगे, या सिर्फ 5 होंगे, या सिर्फ 2 एंड 5 होंगे. ये बात समझ में आ गई. चलिए, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, so this is the question. The first question क्या कह रहा है, the first question is saying that 13 divide by 3125. ठीक है, so सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, the first thing will be making a prime factors of denominator. ठीक है, so प्राइम फैक्टराइजेशन करना सभी को आता होगा, मैं साइड में कर देती हूँ.
ये 3 1 2 5 इनके फैक्टर्स निकालने, तो हम वही एलसीएम वाला मेथड अपना लेंगे। लास्ट में क्या है 5 है, सो हम पहले स्टार्ट 5 से ही कर लेते हैं। 5 6 विल बी 30, 12 हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। 5 से 2 10, 5 25, 5 5 25, 5 1 5। सो कितने 5 आए? 1 2 3 4 5। 5 की पावर क्या हो गई? 5। सो क्या हो जाएगा? 13, 5 की पावर 5। सो इट विल बी, क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे? सिंस 13 by 3 1 2 5 can be written as 13 divided by 5 की और 5, here denominator only 5 as a factor, therefore 13 divided by 3125 will be terminating. अंडरस्टूड? सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ऑल राइट, सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है? 17/8। अगर 17/8 की बात मैं करूं, सो ये तो पहले से आप समझ सकते हो कि 8 क्या है? सिर्फ किसका फैक्टर है? 2 का फैक्टर है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ 17, 2 का क्यूब होता है ये, 2 का क्यूब। सो ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज क्या लिखोगे? अब लैंग्वेज वही सेम लिख दोगे कि here denominator have only 2 as a factor, so this will be terminating. So I hope ये भी easy था, कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, लैंग्वेज आप समझ ही चुके होंगे। थर्ड में क्या है? 64/455। 64/455। ठीक है, सो पहले इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं 455 के। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 91 आ गया। 91 किसके टेबल में आएगा? इट विल बी, ठीक है, तो ये 7 से चला जाएगा। नेक्स्ट 7 13 जा 13 1 जा। सो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए? इसके फैक्टर्स निकल के आए, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब आप मुझे बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 तो है, बट उसके संग में क्या है? 7 भी है और 13 भी है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, सो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये इस वजह से क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऑल राइट, सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसकी भी लैंग्वेज एक बार समझ लीजिए। सो लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे? You will write in language that since Q is not in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, therefore given rational number is non-terminating. ठीक है, सिंपल, आपको बस वही थ्योरम वाली लैंग्वेज आपको नोट कर देनी है। अंडरस्टूड? इसको मैं रेज कर देती हूँ। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर, दिस पार्ट फोर्थ में क्या है? 15/1600। ठीक है, तो 16 का हमें बहुत ज्यादा फैक्टर करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज वी नो 1600। 16 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 into 4, यानी 2 into 2 और 2 into 2। ठीक है, और 100 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 50
और 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं ना। सो यहाँ से हमें 2 5 मिलेंगे और 2 2s मिलेंगे। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 × 5, ये हो जाएगा 2 × 5। सो यहाँ से 2 2 आ गए यहाँ पे और 2 5 आ गए। ठीक है, टोटल 2 कितने हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 की पावर 6 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे नोट कर देते हैं, हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। कंप्लीट। नाउ यू कैन डेफिनेटली सी कि किसके फॉर्म में ये p/q है, जहाँ पे q क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n या m1 कैसे भी लिख सकते हो, इसके फॉर्म में है, राइट। सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप लैंग्वेज नोट कर सकते हो, चाहो तो बुक की हेल्प ले सकते हो या फिर अपनी लैंग्वेज खुद फ्रेम कर सकते हो। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लैंग्वेज लिखने का, बस आपको हर चीज क्या है क्लियरली मेंशन करनी है। ठीक है, चलिए। Now let's move to the fifth part of this question. ठीक है, सो हमने यहाँ पे कौन कौन से पार्ट कर लिए, 4 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 29/343। ठीक है, 29/343। चलिए 343 का हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग। किससे जाएगा ये, 3 से ही जाएगा, नहीं जाएगा 3 से। सो लेट्स चेक। 7 7 5 35, 7 4 28 और ये हो जाएगा 4 and 2 6 63। हाँ 7 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 28। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पे, 6 बचा, 63 हो गया एंड 7 9 कितना होता है 63। फिर 7 7 49 एंड 7 1 7। सो ये क्या हो गया, 29 डिवाइड बाय 7 का क्यूब, विच इज अगेन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज इसमें 2 और 5 तो है ही नहीं, 7 तो हमें चाहिए ही नहीं था। करेक्ट। So in this way you can solve it. So let's move to the sixth part. Sixth part is saying it is already in the form. आप यहीं पे solve कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, एक चीज और बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पावर देखी, ठीक है, और मान लो साथ में कुछ होता, सपोज 23 लिखा होता, तो आप सोचते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, आपको चेक करना होगा कि न्यूमरेटर से कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो पहले सिंपल फॉर्म में करोगे एंड फिर चलोगे। ये एक एग्जांपल था, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में जहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया जाता है। ठीक है, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना, इसमें एक पार्ट है ऐसा, मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में। सो हियर यू कैन सी दैट कि फैक्टर्स में क्या है, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स है। सो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा सिंपली। सेवेंथ पार्ट में क्या है, 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो कि 129 क्या है, चेक कर लो कि कहीं 129 जो है वो कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है 7 से। अगर हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए पहले उसको। ठीक है, वैसे ही इतना कैंसिल होगा नहीं, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर 7 की पावर 5, 7 का स्क्वायर 49 होता है एंड 49 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। सो 129 से तो बहुत ज्यादा होने वाला है, इसका लाइक कैंसिल तो नहीं होगा। सो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर। नाउ 6 डिवाइड बाय 15। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो यहीं पे। 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 5। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको कैंसिल करना है। अगर आप कैंसिल नहीं करते तो क्या करते हैं, आप इसको लिखते हैं 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5। और आप सोचते हैं कि 3 कैसे आ गया डिनोमिनेटर में, 3 तो मुझे चाहिए नहीं, और आप डायरेक्टली क्या कर देते, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कर देते, जो कि हो जाता कंप्लीटली रॉन्ग। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज 35/50। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। 5 टू 10 हो जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा। सो ये 5 कैंसिल हम कर भी सकते हैं, तब भी हमें भी क्या मिलेगा, 5 और 2 ही है फैक्टर्स में डिनोमिनेटर के, और कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ बिकॉज
बहुत ज्यादा हमें वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। 77 और 210, अब इसको आप समझिएगा। 77 को सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको 7 मल्टीप्लाई बाई 11, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 210 है ना, सो इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू 10, 21 इंटू 10। अब देख लीजिए यहाँ पे 210 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 10, 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 7 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 3 अभी भी है, 3 अभी भी है, 3 कैंसिल नहीं हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है डिनोमिनेटर में, 2 5 तो मिल रहे हैं, लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है, और हमें क्लियरली पता है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होगा, तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऑल राइट, सो this is the first question we have completed of exercise 1.4. Remaining questions will be done in next session. Till then, take care, keep practicing, and do subscribe the channel. Thanks for watching. Okay, so see you in the next section. Bye bye.